الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن کے بارے میں کہ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا مارے افسوس کے اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا ساتھ پکڑا ہوتا. کہے گا کہ ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست اور خلیل نہ بنایا ہوتا. اس دوست نے نصیحت آ جانے کے باوجود بھی مجھے گمراہ کر دیا. اور شیطان انسان کو عین وقت پر دھوکہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ کہ فرشتے اور روح الامین اس کی طرف ایک ایسے دن میں چڑھیں گے جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. سامنے کرام، وہ دن کتنا لمبا ہوگا، کتنا خوفناک ہوگا کہ بچے تک بوڑھے ہو جائیں گے. اللہ عز نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اگر تم نے اس دن کا انکار کیا تو پھر اس دن کا عذاب سے کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا. سامعین کرام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سورج مخلوق سے بالکل قریب کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. اب راوی حدیث کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے، زمین کی مسافت مراد ہے یا وہ میل مراد ہے جس سے آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے. اس دن ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبا ہوگا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ٹخنوں تک ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو گھٹنوں تک ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے کوکھ تک ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کو لگام دے رہا ہوگا، یعنی منہ تک پہنچا ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کا پسینہ کان تک پہنچ رہا ہوگا، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. سامنے کرام، چاہے کوئی دیہات کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو، چاہے کوئی عالم ہو یا غیر عالم ہو، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، امیر ہو فقیر ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی کوشش کا مرکز اور محور صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا لوں. اور کیا بنا لوں؟ رہنے کے لیے گھر بنا لوں، ٹھنڈے سے بچنے کے لیے موٹے کپڑے خرید لوں، کمبل لے لوں، اور گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا لگا لوں، کولر لگا لوں. یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ دیا ہے تو سوچتا ہے کہ اے سی کا بندوبست کر لوں. تو ساری کوشش کا مرکز اور محور کیا ہے؟ آرام. یہ عزت، یہ شہرت دوسرے نمبر پر آتی ہے، اپنا آرام یہ پہلا نمبر آتا ہے. تو سامنے کرام، 60 سالہ زندگی کے لیے یا 70 سالہ زندگی کے لیے اتنی کوشش، اتنی محنت، اس دن کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے، کوئی بندوبست کیا ہے، تو وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. سورج بالکل قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج منہ تک پہنچا ہوگا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سخت دن ہوگا، گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو جس نے اس زندگی میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اس دن کی دھوپ کا خیال کر کے مسجد میں آ کر کے پیشانی رکھی ہوگی، نماز پڑھی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بندوبست کرے گا. کیا بندوبست کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کرے گا. یہ ایک جنتی نہر ہے جس کا پانی
दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ से ज़्यादा ठंडा होगा। जो एक बार पी लेगा जन्नत में जाने तक कभी प्यासा नहीं होगा। वो कौन खुशनसीब होंगे जो नबी अलैहिस्सलाम के हाथों से हौज़े कौसर से पानी पिएंगे। वो खुशनसीब कौन होंगे जो नमाज की पाबंदी करते थे, नमाज के लिए वजू करते थे, तो वजू करने की वजह से उनके हाथ पांव पेशानी चमक रहे होंगे। यही इनकी पहचान होगी और इनको नबी अलैहिस्सलाम अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। मोहतरम सामीन, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सब आतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि अल्लाह ताला 7 खुशनसीबों को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा। वो खुशनसीब कौन होंगे? नंबर 1 इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला हुक्मरान, इंसाफ करने वाला मुखिया, इंसाफ करने वाला अफसर या इंसाफ करने वाला काजी, कोई भी हो, अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के साए में जगह देगा। एक हदीस में है इन्नल मुक़सितीना इंदल्लाहि अला मनाबिरा, कि जो इंसाफ करते हैं कल क़यामत के रोज़ नूर के ऐसे मिंबरों पर जलवा अफरोज होंगे जो अल्लाह के दाहिने जानिब होंगे और अल्लाह का दोनों हाथ है, दाहिना है। ये कौन लोग होंगे? जो फैसला इंसाफ क्या करते थे अपने फैसलों में, अपने घर वालों में और हर उस चीज़ में जिसमें उनको जिम्मेदारी दी जाती थी। लेकिन इसके उल्टा, इसके बरखिलाफ जिसको ओहदा मिला, जिसको मनसब मिला और उसने हक अदा नहीं किया, बल्कि वफात इस हाल में हुई कि लोगों को धोखा दे रहा था, तो ऐसे शख्स के ऊपर अल्लाह ताला जन्नत हराम कर देता है। मनसब मिला, ओहदा मिला, उसका गलत इस्तेमाल किया, तो ऐसा शख्स शुरू में जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं हो सकता। सामने कराम, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरैश की एक औरत ने चोरी कर ली और इस्लाम में चोरी का हुक्म क्या है कि ऐसे शख्स का हाथ काटा जाए। तो कुरैश वालों को बड़ी फिक्र हुई, अगर इसका हाथ काटा गया तो हमारे ख़ानदान की बदनामी होगी। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि नबी अलैहिस्सलाम से बातचीत करते हैं, सिफारिश करते हैं, लेकिन बात आई कि किसकी हिम्मत है, किसकी जुरात है जो नबी से बात करेगा। लोगों ने तैयार किया हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। ये नबी अलैहिस्सलाम के बड़े चहेते थे, नबी अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत करते थे। इन्होंने सिफारिश की कि अल्लाह के रसूल उनका हाथ ना काटा जाए। आप नाराज हुए, गुस्से में आए और कहा उसामा अतशफ़उ फी हद मिन हुदूदिल्लाह, अल्लाह के हद में सिफारिश कर रहे हो। फिर आप खड़े हुए और आपने खुतबा दिया कि तुमसे पहले के लोग बर्बाद हुए इसी नाते कि उनका जब मालदार आदमी चोरी करता था, बड़े घराने का चोरी करता था, उसे लोग छोड़ देते थे, और जब कमजोर चोरी करता था तो उस पर हद नाफिज करते थे, सजा देते थे। आपने क्या फरमाया? वअयमुल्लाहि, अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती मैं उनका भी हाथ काट देता। यह इस्लाम, इस्लाम इंसाफ का हुक्म देता है, चाहे अपने हो या गैर हों। सामने कराम, हजरत नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने कुछ माल बतौर हदिया मुझे अता किया, तो अम्मी ने क्या कहा, मैं खुश और राजी नहीं हूँ जब तक कि नबी अलैहिस्सलाम को इस पर गवाह न बना लिया जाए। चुनांचा मेरे वालिद मोहतरम नबी अलैहिस्सलाम के पास आए गवाह बनाने के लिए। आपने कहा क्या आपने हदिया तमाम बेटों को दिया है, तमाम औलाद को दिया? कहा नहीं। तो आपने कहा कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बन सकता। फिर आपने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। इसके बाद मेरे वालिद मोहतरम ने वो हदिया मुझसे वापस ले लिया। सामने कराम, इसी तरह से एक मर्तबा एक यहूद और एक मुनाफिक मुसलमान के दरमियान किसी बात पर बहस हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला किसके हक में किया? गैर मुस्लिम यहूदी के हक में। लेकिन उस मुनाफिक मुसलमान ने आपके फैसले को कबूल नहीं किया। आया उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, क्या सोच कर, हम भी मुसलमान हैं, हम मुसलमान का दावा करते हैं, ये भी मुसलमान है, ये हमारी तरफदारी करेंगे, हमारे हक में फैसला करेंगे। तो उस यहूदी ने क्या कहा कि मुसलमानों के नबी ने हमारे हक में फैसला सुनाया है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला ने कहा रुको, ठहरो, मैं आता हूँ। अंदर गए, तलवार निकाला, उसकी गर्दन उड़ा दी। कहा जो नबी के फैसले को मंजूर ना करे उसका यही सजा है। तो सामने कराम, वो क्या सोच कर आया था कि हम मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान है, तो हमारे हक में फैसला करेंगे। लेकिन इस्लाम इंसाफ का हुक्म देता है, चाहे कोई अपना हो या गैर हो। इसी तरह सामने कराम, सन 1880 ईस्वी के अंदर जब इस हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुक्मरानी थी, बिल्कुल तसल्लुत था, तो मशरकी पंजाब का मशहूर जिला मुजफ्फरनगर में एक कस्बा है काधला, वहाँ
हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ हो गया एक ज़मीन को लेकर के। हिंदू कह रहे थे ये मंदिर की ज़मीन है और मुसलमान कह रहे थे ये मस्जिद की ज़मीन है। चुनांचा अंग्रेज जज ने तंग आकर के हिंदुओं से कहा किसी ऐसे शख्स का नाम बताओ जिसकी बातों पर सबको यकीन हो, सबको भरोसा हो। चुनांचा आलम दीन मौलाना मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह पर दोनों गिरोह का इत्तेफाक हो गया कि ये जो गवाही देंगे, जो कहेंगे हम मानने के लिए तैयार हैं। चुनांचा मौलाना बख्श रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया गया और जब उनसे पूछा गया जमीन के बारे में तो उन्होंने साफ साफ कहा ये जमीन मंदिर की है, इस पर हिंदुओं का हक है। कहते हैं ये फैसला सुनने के बाद उस गांव के सारे हिंदुओं ने इस्लाम कबूल कर लिया और उस जगह पर मस्जिद बनाई गई। उस वक्त जज ने, अंग्रेज जज ने तारीखी जुमला कहा था कि आज मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। तो सामने कराम, इस्लाम हमेशा इंसाफ को हुक्म देता है, चाहे कोई अपना हो या गैर हो। और भी याद रखें इंसाफ करना ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। इससे दुश्मनियां पैदा होती हैं, दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, करीबी दूर हो जाते हैं, हत्ता की जान भी देनी पड़ सकती है हक बात बोलने की वजह से। आप देखें उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा थे, बादशाह थे, 2.5 साल से कम हुकूमत की, लेकिन इंसाफ क्या करते थे। इनके जमाने में एक शख्स ज़कात लेकर निकलता था लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। इनके जमाने में भेड़ियां और बकरियां एक साथ चरते हुए देखा गया। क्यों? इनके इंसाफ की वजह से। लेकिन इनके इंसाफ की वजह से इनके खानदान के लोगों ने खुद इनको कत्ल किया। कैसे? गुलाम को मजबूर किया कि पानी में जहर मिला करके बादशाह को पिला दो, ऐसा करने पर हम तुम्हें बड़ा इनाम देंगे। गुलाम लालच में आ गया, उसने पानी में जहर मिलाया और बादशाह को पिला दिया। तो सामने कराम खुलासा यह है अदल के बारे में, इंसाफ के बारे में कि अदल करो, अल्लाह से डरो और अल्लाह के सामने किसी की फिक्र मत करो, किसी की परवाह मत करो। क्यों? सब कुछ किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। नफा नुकसान के मालिक सिर्फ अल्लाह की जात है। हर वो काम कीजिए जिसमें रब की खुशी है। याद रखें हम सब क्या कहते हैं मुसीबत के वक्त, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या मतलब है कि हम सब अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह ही के पास जाने वाले हैं। तो जो भी कीजिए अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए कीजिए। इसी तरह सामने कराम दूसरा खुश नसीब कौन होगा जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा? शाबुन नशअ फी बलतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को रब की बंदगी में गुजारा होगा। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के अंदर उन नौजवानों की तारीफ की है जो गार में छिप गए थे सिर्फ अपने इस्लाम और ईमान की हिफाजत के लिए। वो तौहीद पर थे, तौहीद पर डर गए और शिर्क से उन्होंने इनकार किया। इसी तरह सामने कराम तीसरा वो शख्स होगा जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों से लगा रहता था। एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करता था, नमाज से मोहब्बत थी। कितने ऐसे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान नहीं होती पहले ही मस्जिद पहुंच जाते हैं। तो खुश नसीब है ऐसे लोग। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपने अर्श के नीचे जगह देगा। हदीस में आता है कि जो शख्स वजू करता है फिर मस्जिद में आता है तो वो अल्लाह का मेहमान होता है और मेजबान पर हक है कि अल्लाह उसकी इज्जत करे। सोचिए कितने खुश नसीब हैं कि आप मेहमान हैं और मेजबान कौन है? अल्लाह ताला है। हदीस में आता है कि जो सुबह के टाइम, शाम के टाइम जब मस्जिद में जाता है अल्लाह ताला तब जन्नत में उसके लिए मेहमान नवाजी की तैयारी करता है। इसी तरह सामने कराम चौथा कौन शख्स होगा जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा? रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ अलैहि, वो दो साथी होंगे जिन्होंने आपस में दोस्ती की तो अल्लाह की खातिर दोस्ती की, इकट्ठा हुए तो अल्लाह के लिए इकट्ठा हुए, जुदा हुए तो अल्लाह के लिए इकट्ठा हुए। अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ कहेंगे कहाँ हैं मेरे खातिर आज मोहब्बत करने वाले? आज मैं उनको अपने अर्श का साया नसीब करूंगा और इसके अलावा कोई और साया नहीं होगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल कौन है? सहाबे कराम हैं, मुहाजिर साहबा जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, मक्का छोड़ दिया सिर्फ इस्लाम की खातिर। कहाँ गए? मदीना। वहां के मुसलमानों ने इस्तकबाल किया और एक सगे भाई से भी ज्यादा उनको माना जाना। सामने कराम आपको साद बिन मुआज का तारीखी जुमला याद होगा। उन्होंने कहा था अब्दुर्रहमान बिन औफ से, जो मुहाजिर सहाबी थे, कहते हैं कि मैं सबसे मालदार सहाबी हूं मदीना के अंदर। मैं अपने जायदाद को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं, एक आप रहेगा एक मेरा रहेगा। यहां तक कहा कि मेरे पास 2 बीवियां हैं, जो पसंद आए आप उसका इंतखाब कीजिए, मैं उसे तलाक देता हूं, आप उससे निकाह कर लें। ये मोहब्बत क्यों थी? अल्लाह उसके रसूल के खातिर। सामने कराम पांचवा शख्स जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा वो आदमी होगा जिसको हस्ब नसब वाली औरत ने, मालदार औरत ने, खूबसूरत औरत ने, गुनाह
गुनाह की दावत दी होगी तो उसने कहा होगा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं इस गुनाह में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आप देखें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह की बीवी ने इनको गुनाह की दावत दी, कहा माअज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं इस बुराई में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, और भागे बंद दरवाजे की तरफ, और अल्लाह ने उनको नजात दी। तो जो शख्स भी गुनाह से बचना चाहेगा अल्लाह उसे बचाएगा। हमारे अस्लाफ का क्या हाल था, उनकी खूबसूरती की वजह से जब एक औरत ने, मालदार औरत ने गुनाह की दावत दी, मजबूर हो गए तो कहा ठहरो मैं अभी आता हूं। गए, गंदी नाली बह रही थी, उसमें अपने आप को लोट पोट कर लिया, फिर उसी हालत में उस औरत के सामने आए, औरत को घिन महसूस हुई, उसने उसको भगा दिया। इसी तरह बनी इसराइल में एक लड़की थी, गुर्बत व अफलास की नौबत आ गई, गुनाह करने पर मजबूर हो गई। जब ऐन गुनाह का वक्त आया तो उसने क्या कहा, या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो और बगैर निकाह के इज्जत व आबरू को बर्बाद मत करो। वो आदमी लरज़ गया, कांप उठा अल्लाह के डर और खौफ से, और उस गुनाह को उसने छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ अपने अर्श के नीचे जगह देगा। इसी तरह से सामने किराम छठा आदमी कौन होगा, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, वो आदमी जो सदका खैरात किया करता था, चुपके से दिया करता था, दाहिने हाथ से दिया, बाएं हाथ को खबर नहीं हुई कि उसने क्या चीज दिया है। मदीना के अंदर अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह मालदार आदमी थे, हर रात रोटियों का बोरा अपनी कमर पर लाते थे और मदीना के 100 घरों में खाना पहुंचाया करते थे। वो घर किसके थे, यतीमों, मिस्किनों, बेवाओं के। और ताज्जुब वाली बात यह है कि उन घर वालों को पता भी नहीं होता था कि खाना लाने वाला कौन है। कब वो खबर हुई, जब इनकी वफात हुई और इनको गुस्ल दिया जाने लगा तो इनके पीठ पर काले काले निशानात देखे गए। फतअज्जबन्नास, लोगों को हैरानी हुई कि जिंदगी भर इनको मजदूरी करते भी नहीं देखा गया, बोझ उठाते भी नहीं देखा गया, ये काले निशानात कहां से आ गए। कहते हैं उसी दिन से तमाम घरों में खाना पहुंचना बंद हो गया। तब जाके लोगों को मालूम हुआ कि खाना लाने वाले कौन थे, अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह थे। ये अपनी जिंदगी में कहा करते थे सदक़तु सिर्री तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब्बी, कि चुपके से सदका करना ये रब के गुस्से को ठंडा करता है। सामने किराम सातवां आदमी कौन होगा, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़तैना, वो आदमी जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया होगा और अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से उसने रोया होगा, आंखों से आंसू निकला होगा, अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे उसे जगह देगा। हदीस में आता है 2 आंखें ऐसी हैं जहन्नम उसे नहीं छू सकती हैं, एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से रोती है और दूसरी वो आंख जो अल्लाह की राह में पहरा देती है। सामने किराम इसके अलावा भी लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे जगह देगा। एक शख्स होगा जो तंगदस्ती में लोगों को मोहलत दिया करता था और कर्जा माफ करता था। हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिस शख्स को इस बात से खुशी है कि क़यामत की सख्तियों से अल्लाह ताला महफूज रखे और अपने अर्श के साए में जगह दे, उसे चाहिए कि तंगदस्त को मोहलत दे। सामने किराम एक और शख्स जिसको अल्लाह ताला, और आखिरी बात है जिसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा, वो होगा सच्चा ताजिर, अमानतदार ताजिर। हदीस में आता है कि जो सच्चा ताजिर होगा ये 7 लोगों के साथ होगा जिन्हें अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। एक हदीस में है कि जो सच्चा ताजिर है, अमानतदार है, क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों और शहीदों के साथ होगा। सामने किराम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ सौदा था, कुछ माल था, तो लोग आए और कहा कि हम इस सौदे को 5000 में खरीदना चाहते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुझे 1 दिन की मोहलत दो, मैं गौर करूंगा, सोचूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। कहते हैं रात निकल गई, जब सुबह का वक्त हुआ तो दूसरे लोग आ पहुंचे, कहा हम इस सौदे को 10,000 देने के लिए तैयार हैं। तो इमाम बुखारी ने क्या कहा, मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, मैं पहले लोगों को दूंगा, 5000 में दूंगा। क्यों? मैंने रात में नीयत कर ली थी उन लोगों को देने की, अब मैं अपनी नीयत को नहीं तोड़ सकता। ये थे हमारे अस्लाफ, लालच नहीं थी तो अल्लाह ताला उनके माल में बरकत देता था। और आखिरी वाक़या सामने किराम, शाम से एक शख्स जब बाजार में जाता है तो यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह की दुकान में दाखिल होते हैं, तो उनसे कहते हैं मुनक्कस चादर क्या 400 में मिल सकता है? उन्होंने कहा कि ऐसी चादर सिर्फ 200 में मिल सकती है। कहते हैं इतने में अजान हो गई और यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ने के लिए चले गए। इतने में इनका भतीजा वही चादर उसी शख्स को 400 में फरोख्त कर दिया। जब ये नमाज पढ़ने के बाद आए तो कहा पैसा कहाँ से पैसा आया? कहा मैंने एक शख्स को चादर बेची है 400 में।
انہوں نے اس شامی کو بلایا اور 200 واپس کیا. کہا چادر کی قیمت صرف 200 ہے. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا بس یہی کافی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں. تو سامعین کرام پوری بات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی شدت اور اس کی سختیوں سے محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر باقی رکھے، اسلام پر باقی رکھے، خاتمہ تو ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.